मुकरंस मुफलिसों को खाक देते हैं. سستی روٹی میں بھی 70 ارب کا اسکینڈل تھا, 70 ارب روپے کا اسکینڈل تھا. مفت آٹے میں کم از کم اسکینڈل 25 سے 30 ارب کا ہوگا, دوسرا وہ گندم کا ہوگا. سو اس میں گورنمنٹ کی یہ جو خوراک کا جو قحط پیدا کر دیا ہے, یا ایک اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے کہ جس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں آٹا نہیں ہے. 23 کروڑ کی آبادی, جو ہم کہتے تھے کہ ہم بڑی مارکیٹ ہیں, ہم مڈل کلاس کی مارکیٹ ہیں, یہاں پہ یو کین سے کہ دنیا کی چوتھے یا 5ویں نمبر پہ مڈل کلاس تھی بڑی. اس ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے, لوگ ٹورزم کا سوچ رہے تھے, اور ہم نے وہاں بتا دیا کہ آٹا بھی اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے. اب آپ منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے گا, کوئی آپ کے ساتھ انگیج کرے گا. کسی کو آپ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت کیا ہے جہاں 2 میل لمبی لائنیں لگی ہوں, جہاں شہادتیں ہو رہی ہوں آٹے والوں کی. سو پہلا اس کا نقصان یہ ہوا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے 46%, 46% فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوائڈ نہیں ہوتی, ایک فوڈ اور دوسرا ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ کی مہنگائی ہوئی ہے اس مہینے میں 51%, ٹرانسپورٹ کی 51 اور فوڈ کی 46%. اور ان دونوں کی ایوریج ہیومن لائف میں جو پاکستان میں ویٹیج ہے وہ ہے 41%. 41% جو ہمارا ایوریج خرچ ہوتا ہے, 41% خرچہ جو ان 2 چیزوں پہ ہوتا ہے, خوراک اور ٹرانسپورٹ پہ. تو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ویٹ اس کا یہ ہے. اب ان دونوں میں مہنگائی جب زیادہ ہوئی ہے تو غریب آدمی جو ہے بالکل اس کے پاس ڈسکریشنری انکم ختم ہو گئی ہے, اور وہ نہ کپڑا نہ دوسرا کوئی چیز خرید نہیں سکتا. لہٰذا اس سے وہ ایکسپوز ہو گیا, غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. پہلے آپ کہہ لیں تقریباً 80 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, 2 کروڑ نئے لوگ خوراک مہنگی ہونے کی وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں. اب اس میں یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں ایسا ہے. پوری دنیا میں پچھلے سال جو مہنگائی تھی, گلوبل مہنگائی جو تھی 8.8% تھی اور پاکستان میں 12% تھی. پچھلے سال دنیا میں 8.8, پاکستان میں 12. اس سال دنیا میں 6.6% مہنگائی ہے, اور ہمارے ہاں 33% ہونے جا رہی ہے. ایوریج سی پی آئی آئے گی وہ 33% آئے گی. اور اگلے سال دنیا میں مہنگائی 4.4% آ رہی ہے. دنیا میں 4.5% مہنگائی آ رہی ہے, اور ہمارے پاس اگلے سال کی بھی ساری خبریں بری ہیں. ایک بھی خبر اگلے سال بھی ہمارے پاس اچھی نہیں ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے, اس میں یو کین سے کہ موڈی کہہ رہا ہے کہ آپ کی 33% سی پی آئی آئے گی. اچھا, جب ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں تو یہ سارے منہ کھول کے, سارے منہ پیڈا کر کے, یا غصے والا بنا کے, منہ پہ وٹ ڈال کے تو ہمیں کہتے ہیں یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہوا ہے. جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, یہ مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات, آٹا 59 روپے سے چلا گیا 158 روپے پہ. اس میں آئی ایم ایف کا کیا تعلق ہے؟ 95% ہماری لوکل پروڈکشن ہے, 95% لوکل پروڈکشن ہے. اور جتنا آٹا چاہیے تھا سوائے 18 لاکھ ٹن کے, 2 کروڑ 80 لاکھ ٹن چاہیے تھا, 18 لاکھ ٹن صرف امپورٹ کرنا تھا, باقی سارا ہم ان کو دے کے گئے تھے. ٹھیک ہے. انڈے 130 روپے سے چلے گئے 256 روپے درجن. ان کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیلا 119 روپے درجن تھی, 232 روپے پہ چلا گیا. دال مونگ ہم لوکل پیدا کرتے ہیں, دال چنا لوکل پیدا کرتے ہیں, 160 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی. اچھا, ٹماٹر 100 روپے سے, ہمارے دور میں 100 روپے تھا, آج کل 90 روپے ہے. اس پہ آئی ایم ایف کا اثر کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا ٹماٹر. اچھا, ہم دوسرا دیکھتے ہیں, چینی 86 روپے صرف 106 روپے پہ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے. کیا یہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا؟ بیسیکلی ہم کما زیادہ پیدا کر کے گئے تھے. اچھا, وجہ پھر اگلی بات جو ہے, ہمارے دور میں آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹس کی رپورٹ نکالیں, ہمارے دور میں 3.5 سال میں پیریشیبل مین سبزی اینڈ فروٹ اینڈ سبزی کی 3.5 سال میں جو مہنگائی ہوئی, پتہ کتنی تھی؟ 3%. 3.5 سال میں 3%. اور اس سے 1 سال میں پتہ کتنی ہوئی ہے؟ 66%. 66%. مطلب جو کیلا لگا ہوا ہے, جو ٹماٹر کیا نام ہے وہاں, ٹماٹر لگا ہوا ہے, آلو اگ رہا ہے, پیاز ہے, اس کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق ہے؟ آئی ایم ایف کیا ٹماٹر کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے مہنگا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے. یا مطلب پیاز کو کہتا ہے, یا آلو کو کہتا ہے؟ آلو پچھلے سال کیوں سستا تھا؟ ہم نے 35% آلو کی پیداوار بڑھائی, سبزیوں کی 35% پیداوار ہم نے بڑھائی. ہم نے اسی طرح باقی مطلب دنیا میں 8 فصلوں میں ہم سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ تھی ہماری, 8 فصلوں میں سیکنڈ ہائیسٹ گروتھ تھی ہماری. اچھا, اگلی ہم بات کرتے ہیں تو ان حالات میں مجھے میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے.
میاں نواز شریف نے کل پریس کانفرنس پرسوں کی ہے تو انہوں نے بڑا منہ موٹا کر کے کہا کہ اگر یہ فل بینچ نہ بنا تو ڈالر 500 روپے کا ہو جائے گا. میاں صاحب کے بہت ڈالر ہیں, ہمیں پتہ ہے. مریم کے پاس بھی بہت ہیں, اسحاق ڈار کے پاس بھی بہت ہیں, شہباز شریف کے پاس, زرداری کے پاس, ساروں کے پاس بہت ڈالر ہیں. ان کی خواہش تو یہ ہو سکتی ہے, بلکہ یقیناً ہوگی. اور دوسرا, وہ جو ڈالر کے ساتھ ہوا ہے 180 روپے پہ سے اٹھ کے 285 روپے پہ چلا گیا ہے, اور آگے میاں صاحب خوشخبری سنا رہے ہیں قوم کو کہ یہ 500 کا ہو جائے گا, کیونکہ سپریم کورٹ نے ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں کرنا, کیونکہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑا ہے, قانون کے ساتھ کھڑا ہے, اس لیے 500 کا ہو جانا ہے. میاں صاحب آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم نے جو پہلے کیا یہ بہت تھوڑا ہے, ہم آپ کے ساتھ اس سے زیادہ کرنے کو جا رہے ہیں, لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہوگا, قصور کسی اور کا ہوگا. سو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو رویہ ہے یو کین سے کہ اس رویے نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے میاں نواز شریف. اچھا, اس میں دوسری بات انہوں نے کی کہ آٹے کی لائنوں سے میں بڑا دکھی ہوں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے, آپ کے چھوٹے بھائی نے جب آٹا پورا دے کے 2,86,00,000 ٹن گندم جب دے کے گئے ہیں ہم اس کو, اور آج بھی 18 لاکھ ٹن اگلے سال کے ریزرو کے لیے آٹا گندم موجود ہے ہمارے پاس. سندھ میں گندم آ گئی, آج بھی 6.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے وہاں پہ. پنجاب میں 1 ملین ٹن گندم آج بھی پڑی ہے نا. سندھ میں 1.5 لاکھ ہے, پنجاب میں اس وقت 7 لاکھ ٹن ہے روزانہ. آج کے بعد 40 دن کی گندم پنجاب میں موجود ہے, آج کے بعد 40 دن کی گندم سندھ میں موجود ہے, کے پی میں موجود ہے. تو پھر یہ لائنیں کیوں, پھر یہ شہادتیں کیوں, پھر یہ 59 روپے سے بڑھ کے تو 158 روپے کیوں, اور پھر میاں سب دکھی ہیں. بھئی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ آج بھی دنیا کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ آپ کی فیملی میں IQ نہیں ہے, آپ کی فیملی میں تعلیم نہیں ہے, آپ کی فیملی میں فراڈ کے علاوہ ہے کچھ نہیں, لیکن 23 کروڑ لوگوں میں یار کم از کم 5-7 کروڑ لوگ بڑے سیانے ہیں اس ملک میں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ منہ کھولتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے, آپ کے منہ کھولنے سے پہلے ان کو سمجھ آتی ہے آپ نے بولنا کیا ہے. سو میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب میں بڑا دکھی ہوں. اور پھر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں 2018 میں ملک بڑی ترقی کر رہا تھا. 2018 میں ہماری پرفارمنس کیا تھی؟ 1990 سے 93 تک, 1997 سے 99 تک, اور 2013 سے 18 تک. آپ تینوں ادوار کھول کے دیکھیں, تینوں ادوار میں یہ چیزیں سامنے ہیں. ہر جگہ ہر دور میں ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. 2013 سے 18 تک جو ان کا سنہری دور وہ کہتے ہیں 5 سال جس میں پورے کیے, جس دن میاں صاحب تشریف لائے تھے اس دن پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو تھی 13.5%, اور جس دن میاں صاحب ماشاءاللہ گئے تھے نااہل ہو کے, ڈسکوالیفائی ہو کے, اس دن ایکسپورٹ تھی پاکستان کی 8.8% ٹو دا GDP. 5% پاکستان کی ایکسپورٹ ٹو GDP کم ہو گئی تھی, اور ہر دور میں کم ہوئی ہے. دوسری بات, میاں صاحب جب آتے ہیں ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, جب جاتے ہیں ریزرو کم ہوتے ہیں. آپ تمام ادوار میں دیکھ لیں, آتے ہیں تو ریزرو زیادہ ہوتے ہیں, جاتے ہیں تو ریزرو کم ہوتے ہیں. میاں صاحب جب آتے ہیں لوکل مینوفیکچرنگ ہرٹ ہو جاتی ہے. کل ہاتھ جوڑ رہی تھی ساری ٹیکسٹائل کہ جناب ہمارے ساتھ ہمیں بچنے دیں, اور لوکل انڈسٹری ہمیشہ ڈیمیج ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمیشہ بڑا ہے جب بھی میاں صاحب آتے ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشن میاں صاحب کا ترا امتیاز ہے. وہ لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں, وہ پولیس مقابلے کروائیں, وہ لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کریں, یا پنجاب جیسے صوبے میں, لاہور جیسے شہر میں لوگوں کو مسنگ پرسن کر دیں. یہ کبھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ میں دور میں نہیں ہوا تھا کہ لوگ مسنگ پرسن ہو جائیں. یہ پہلی بار آپ کہہ 75 سالوں میں ہوا ہے کہ باقاعدہ بغیر کسی ابھی کیا نام ہے مشوانی واپس آیا ہے, کہیں کسی کو نہیں ہے. کس نے گرفتار کیا؟ کوئی سامنے نہیں آیا. بھئی اگر اسٹیٹ نے کوئی لا کے مطابق کام کیا ہے, اسٹیٹ میں اگر اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ ہم نے گرفتار کیوں کیا تھا, اگر اسٹیٹ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے, پھر اسٹیٹ بدماش ہے, پھر حکومت بدماش ہے, پھر حکومت نہیں ہے, یہ لا نہیں ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ آئین نہیں ہے, پھر یہ گنڈے ہیں, موالی ہیں, بدماش ہیں. تو بدماشی سے حکومتیں نہیں چلتی. اگلی بات ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہی مسنگ پرسن کے ساتھ, پھر آج سارے کے سارے جوڈیشری بھی ڈسکس کر اٹیک کر رہے ہیں اور الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پھر ہم جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بات بار بار پوچھتے ہیں کہ تباہی
11 महीनों में तो नहीं हुई। बार बार पूछते हैं कि 11 महीनों से तबाही नहीं हुई, ये इमरान खान खराबी कर गया था इसलिए तबाही हुई है। सिर्फ 2 फिगरें आप देख लें, आपको तबाही की समझ आ जाएगी। सिर्फ 2 फिगरें। पहली फिगर ये, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 29% कम हुई है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 29% कम हुई है। ये वो टेक्सटाइल है जो 24% के हिसाब से बढ़ रही थी। पिछले साल 24% बढ़ी, इस साल 29% कम हुई। इसका मतलब क्या है? 53% का फ़र्क आ गया एक साल में। फिर हम देखते हैं ओवरऑल एक्सपोर्ट को। ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल 11-12% बढ़ रही थी, इस साल 11-12% कम हो गई। ओवरऑल एक्सपोर्ट 22-23% का फ़र्क आता है। फिर हम देखते हैं इसको फॉरेन रेमिटेंस को। फॉरेन रेमिटेंस पिछले साल 11% बढ़ रही थी, इस साल 10.9% कम हुई है। 22% यहाँ डिफरेंस आ गया। आपकी 63 अरब डॉलर की इनकम थी एक्सपोर्ट से और फॉरेन रेमिटेंस से। 63 अरब डॉलर की जो आपकी इनकम थी उसमें 25% डाउनफॉल आ गया। ये बनेगा तकरीबन 15 अरब रुपया, 15 अरब डॉलर। जब 15 अरब डॉलर आपकी इनकम से कम हो गए तो फिर आपने बैगिंग करनी नहीं है, तो और करना क्या है? फिर यू आर नॉट चूज़र। फिर आप बैगिंग करें, जहाँ जाएं लोग आपकी शक्ल पे लिखा हुआ देखेंगे भिखारी आ गए हैं, ये मंगते आ गए हैं, लोग आपसे सामना लें, लोग आपके पास ना खड़े हों, आप जिसका हाथ पकड़े हुए जोकरों की तरह खड़े रहें, छोड़ें ना, और यहाँ पे आके पाकिस्तान को भाषण दें। मियाँ अपना आपके वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की है कल, ऐसे लगता है ये आप कह लें कि अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे हैं, और सारा टब्बर अपोजिशन बने हुए हैं। मरियम नवाज़ अपोजिशन लीडर है, नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, सारे वज़रा अपोजिशन लीडर हैं, और वज़ीर आज़म, सिटिंग वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की तकरीर करता है। भाई आप मतलब दुख वाली बात है। मुझे ज़िंदगी में कभी कोई दुख होता है तो मुझे होता है कि मुझे कोई बेवकूफ़ समझे। सबसे बड़ा दुख मेरे लिए होता है मुझे कोई बेवकूफ़ समझे। भाई 23 करोड़ लोग हैं, आप इतना बेवकूफ़ समझते हैं इनको कि आप हुकूमत कर रहे हैं, सारे हर जगह आपकी हुकूमत है, और आप कह रहे हैं लीडर, आप क्या ज़िम्मेदार किसी और को ठहरा रहे हैं। मतलब हमें तो डर आता है कि अपने बच्चों के ज़िम्मेदार ना हमें ठहरा दें। वाकई हमें डर आता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, और फिर आइन और कानून जो है उससे ये भाग रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। और यू कैन से कि जब आइन और कानून से हट के रिगिंग की बात करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें, चूत चलाकियाँ हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाला है उस तरफ ये बिल्कुल नहीं जा रहे। सो हम बेसिकली अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि किसान के साथ इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। जो मैं कैद की तरफ बढ़ने की बात कर रहा था वो आखिर में मैं क्लोज उसके इस तरह करता हूँ कि अभी तक जितनी फसलें आई हैं सारी की पैदावार कम है। चीनी कम पैदा हुई है, राइस कम पैदा हुई है, काटन कम पैदा हुई है, और मकई कम पैदा हुई है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम पैदा हुई है। जब हर चीज़ कम पैदा हुई है उसकी वजह 3 चीज़ें थी जहाँ पे मेजर सब्सिडी दी जाती थी। एक DAP अपना फास्फोरस खाद पे, पोटाश खाद पे दी जाती थी। डीज़ल हमेशा पाकिस्तान की तारीख में सस्ता होता था। डीज़ल हमेशा पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल से सस्ता होता था। वजह कि ट्रांसपोर्ट वजीर गरीब आदमी का तल्लक है और ट्रांसपोर्ट से किसान का तल्लक है, और ना डीज़ल के साथ तल्लक है ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्री का और ज़राअत का। और ये तीनों आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं, ये तीनों आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं। इंडस्ट्री भी आपका प्रोडक्शन सेंटर है, ज़राअत भी आपका प्रोडक्शन सेंटर है, और ट्रांसपोर्ट जो है उसको फैसिलिटेट करती है ज़राअत को भी और इंडस्ट्री को भी। तो जो चीज़ फैसिलिटेट करती है इन तीनों चीज़ों पे डीज़ल खर्च होता है, तो डीज़ल हमेशा पेट्रोल से सस्ता दिया जाता था। आज जब से ये आए हैं डीज़ल पेट्रोल से महंगा दिया जा रहा है। उसकी सब्सिडी 140 रुपये वाला, 143 रुपये वाला डीज़ल जो है वो 300 रुपये का हो गया। तो आज ज़राअत इस काबिल नहीं रही। फिर खाद पे सब्सिडी ख़त्म हो गई। फिर ट्यूबवेल हम देते थे 5 रुपये का यूनिट, बिजली के ट्यूबवेल का बिल ले लेते थे 5 रुपये यूनिट। हम जब छोड़ के आ रहे थे गवर्नमेंट उस वक्त हमारा 8.5 रुपये रेट था। आज ये रेट चला गया, सारी सब्सिडी वापस ले ली। आज मैं रेट की 25 रुपये से ज़्यादा, कहीं 25 रुपये के लगभग इसका रेट है। जब आपने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बढ़ा दी, तो उसने DAP नहीं डाली, उसने फास्फोरस खाद नहीं डाली, उसने पूरी ज़मीन तैयार नहीं की, तो अगले साल मुझे सामने नज़र आ रहा है कि 4 मिलियन टन गंदम आपकी ज़रूरत से कम होगी। और 4 मिलियन टन गंदम मंगवाने के लिए आपको $1.5 अरब चाहिए। $1.5 अरब आपके पास डॉलर तो है नहीं। हो सकता है 4 मिलियन डॉलर से भी टन से भी ज़्यादा बढ़ जाए, 5 मिलियन टन बढ़ जाए, और तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर।
$1.5 से $2 अरब की अगर गंदम मंगवाना पड़ती है, 5-5.5 अरब का पहले आप तेल मंगवाते हैं, खाने का तेल मंगवाते हैं, घी मंगवाते हैं, और बाकी भी चीज़ें आपको मंगवाना पड़ें, तो फिर आपके पास तो ये डॉलर नहीं है। जब नहीं है, पैसे भी आपके पास नहीं हैं और अपनी खुराक भी आप पैदा नहीं कर रहे, किसान के खेत आपने उजाड़ दिए, तो फिर मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि हम स्टारवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कैद की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है। और दूसरा, इसके साथ एक तो ये कि उसकी सब्सिडी ख़त्म की, दूसरा इस मुल्क में बड़ा जुल्म हुआ है, इस मुल्क में बड़ा जुल्म हुआ है। हमारे पास 2.25 करोड़ एकड़ गंदम है, 2.5 बोरियाँ या 3 बोरियाँ गंदम की डालते हैं वो, तकरीबन 60 लाख टन 60 लाख बोरी, अपना 6 करोड़ बोरी, 6 करोड़ बोरी यूरिया पड़ती है गंदम को। 21-22 रुपये रेट था, किसान ने 3,000 की ली है, 1,000 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना पड़ा है फ़ी बोरी गंदम का। 60 अरब रुपया उसकी जेब से निकल गया है। 60 अरब उसकी जेब से क्यों निकला है? कि हमने खाद स्मगल कर दी थी, हमने खाद स्मगल कर दी थी, बॉर्डर से पार भेज दी थी। पाकिस्तान में हम सस्ती गैस देते हैं, लिहाजा सस्ती मिलती है। पाकिस्तान में जो यूरिया 2,000 या 2,200 रुपये की है, बाहर वो 7,000 रुपये की है, बॉर्डर पार करती है 7,000 की हो जाती है। सो मैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के सहूलतकारों से और उन लोगों से जिनकी बॉर्डरों की ज़िम्मेदारी है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सर, हमें पता है कि आपने खाद स्मगल की थी, जिसकी कीमत किसानों ने 60 रुपये ज़्यादा दी है, उसका इम्पेक्ट हमारी पैदावार पे ज़रूर आना है, लिहाजा उसका इम्पेक्ट कंज्यूमर पे भी आना है, उसका इम्पेक्ट कहत पे भी आना है। और फिर यू कैन से ये करके अब जो मैं क्लोजिंग करूँगा, मैं समझता हूँ कि बार बार जो बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हम नहीं मानेंगे। भाई आप होते कौन हो? आपके औकात ये है कि आपकी शक्लों पे नहूसत लिखी हुई है, आपकी तभी उम्र पूरी हो गई, एज़ पार्टी आपकी तभी उम्र पूरी हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। ये चार डिवीजन्स का जो अभी सर्वे आया है, 4 डिवीजन के सर्वे में इनके पास कितनी सीटें हैं? मतलब पूरे पिंडी डिवीजन में 1 सीट है, पूरे आप कह रहे फैसला अपना सरगोदा डिवीजन में 3 सीटें हैं, गुजरांवाला डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन 13 सीटें हैं वहाँ पे। सो इनके पास, हमारे पास जो सीटें आ रही हैं, जहाँ से ये इलेक्शन हार रहे हैं और जहाँ से हम जीत रहे हैं, 80% से सारे सर्वे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास। और पीपल्स पार्टी वाले जो दरमियानी आवाज़ में बोलते हैं, उनके पास पूरे पंजाब में 1 सीट है। सो ये मुल्क बना था वोट से, ये ना किसी के अब्बा जी ने ख़रीदा था, ना किसी के अब्बा जी ने फतह किया था, ना किसी के बाप का है, ना किसी के दादा का है। जो कहते हैं हमारा दादा अमीर है, वो दातरी रंपे बनाया करता था। हमें पूरा पता है कौन कितने पानी में था। ये कायदे आज़म ने बनाया था, इस मुल्क के अवाम ने बनाया था, वोट की ताकत से बना था। वोट ही इसका चलन है, वोट से ही चलेगा ये। लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे आएँ। जो गवर्नेंस आपने देनी थी, 2-2, 3-3 गुना महंगाई हो गई, फूड लोगों को अवेलेबल नहीं है, फूड राइट्स हो रहे हैं, कैद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नौकरियां चली गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। आपको शर्म नहीं आती यहाँ बैठे हुए? आप इतनी डिटाई से बाहर आके बैठ जाते हैं, आगे बताते हैं कि हमने इसको कंटिन्यू करना है। भाई कंटिन्यू करने की कोई ऐसा बंदा करे जो कहे जी मैं खुशहाली लेके आया हूँ, मैं पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो भी आइन के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे घर में कोई बंदा आए कि मैं आपका घर आपसे बेहतर चला सकता हूँ, फिर भी मैं उसे इजाज़त नहीं दूँगा अपने घर में आने की। मेरी फैक्ट्री मुझे आके कहे कि चीमा साहब मैं आपकी फैक्ट्री आपसे बेहतर चला सकता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं उसे चलाने की इजाज़त, मेरी इजाज़त के साथ आए, मेरा मुलाजम बन के आए तो आए, मैं उसे इजाज़त दूँ तो आए, वरना क्यों भाई? लेकिन जिन लोगों को मुझे पता है कि फैक्ट्री में चोरी करते हैं, जिन लोगों को पता है घर में चोरी करते हैं, चोर आके, डाकू आके मेरे घर में या मेरी फैक्ट्री में बैठ जाएँ और इसरार करें कि जनाब आपका भला इसी में है, सर हम आपको चोर और डाकू समझते हैं। और इस मुल्क का 95% तबका आपको चोर और डाकू समझता है। 95% लोग आज सर्वे करा लें, मुझे 5% लोग ला दें जो मियां नवाज शरीफ को ईमानदार कह दें, मुझे 5% लोग पैदा कर दें जो जरदारी को ईमानदार कह दें, मुझे 5% लोग सामने मेरे ला दें किसी भी सर्वे में जो फजल रहमान को ईमानदार कह दें, या इन चारों को मिलकर कह दें। 5% ला, सिर्फ 5%। अगर आपको 95% लोग चोर और बेईमान समझते हैं, डाकू समझते हैं, तो फिर आप मेरे घर पे ज़बरदस्ती हुकूमत क्यों करना चाह रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाएं। हम भूख के हाथों मरना नहीं चाहते, हमने बड़े शौक़ से मुल्क बनाया था, हमारा मुल्क है, आज़ादी तब बरकरार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी।
फ्री भी जा रही थी वो ख़त्म कर दी गई है, और जो मुफ्त आटा है वो बगैर किसी मैकेनिज्म के जो है वो दिया जा रहा है, लोग लाइनों में लग के जो है मर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे कि हुकूमत ने जो आटा आम लोगों के लिए जो महंगा किया है उससे कितना ही नुकसान होगा, महंगाई उससे कितनी ही बढ़ी है, आम आदमी की जेब में कितना ही। अच्छा देखिए, मैं ड्रामाटाइज चीज़ों को नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने स्टेट्समैन के तौर पर शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी आज तक नहीं देखा। हल्फन कह रहा हूँ, मैंने शहबाज शरीफ से ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी आज तक नहीं देखा। मैं इसको 2008 से देख रहा हूँ क्लोजली, जो इसने पहला दौरा किया चाइना का, फिर उसके बाद तुर्की का, और उसके बाद दुबई का, तो वापस आके मैंने पीटीआई ज्वाइन की। मैं इससे ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा मैंने नहीं देखा। ये करप्ट भी है और बेवकूफ़ भी है। इसमें दो तरह करप्शन हुई है आटे में कि 2200 की गंदम खरीदी है आपने, उसकी जब कास्ट डालेंगे, उसमें फाइनेंशियल कास्ट डालेंगे और स्टोरेज डालेंगे तो 26-2700 की पड़ेगी। अच्छा, पहले ये दे रहे थे 1800 रुपये की, फिर हो गई 2300 रुपये की। 2300 के देंगे फिर भी उसमें सब्सिडी है, 1800 के देंगे फिर भी सब्सिडी है, और ये नेचुरल हमेशा देते हैं, हमेशा गवर्नमेंट सब्सिडी आटे पे देती है। इन्होंने वो 2300 की देने की बजाय या 1800 की देने की बजाय या 2500 की देने की बजाय, ताकि उसकी आपकी कास्ट पूरी हो जाए, 3900 की बेच रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि 2200 की खरीदी हुई गंदम आप 3900 की बेचें, उसमें पैसे कमाना शुरू कर दें। ये वजह एक बनी। दूसरी यह है कि जो मुफ्त आटा है उसके लिए 73 अरब अलग है, पर इनके पास बुनियादी हक जो है, वोट का हक बुनियादी हक है। और ये समझ लें ज़रा, सारे लोग समझ लें कि ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये पीटीआई वर्सेस पीडीएम नहीं है, ये हर आदमी का बुनियादी हक है। जो उसे डिनाई करेगा वो उसका नुकसान करेगा उस बंदे का। सो बुनियादी जो हक है, 20 अरब रुपये इनके पास नहीं है, बुनियादी हक को डिनाई कर रहे हैं, और 73 अरब दे रहे हैं आटे में। उसमें कहीं बैठ के बाद में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कम से कम 25 अरब की करप्शन होगी उसमें। और साथ वो समझते हैं सस्ती शोहरत आ रही है। बस सस्ती शोहरत क्या कि आपको भाई आपका दुखी हो गया वहाँ बैठा हुआ बेचारा लाइनें देख के। इस वक्त तक 19 शहादतें हो चुकी हैं, इस वक्त तक हज़ारों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, और इस वक्त ये है कि औरतें और मर्द दिहाड़ी छोड़ के वहाँ जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। जितने लोग खड़े होते हैं उसमें चौथा हिस्सा का नाम होता है, 3 हिस्सों का नाम नहीं होता। जब लाइन में सुबह से बंदा खड़ा आ रहा है, जब उसकी 4 बजे बारी आती है, उसे कहता है कि आपका नाम इसमें नहीं है, वो गले पड़ जाता है। जब वो बोलता है आगे से, उसे कोई डंडा मार देता है, कोई उसको मतलब पकड़ता देता है, पुलिस साथ खड़ी होती है, वहाँ राइट शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे से लोगों को पीछे खड़े जितनों को शक है कि हमारा नाम शायद नहीं होगा, वो भी गले पड़ जाते हैं। सो हर रोज़ लोग मर भी रहे हैं, हर रोज़ लोग जख्मी भी हो रहे हैं, और वो आटा कुछ लोग ला के बेचते हैं। इस वक्त तंदूरों पे सारा वही आटा पड़ा हुआ है, मतलब कुछ लोग ला के बेचते हैं, जो मतलब ताकतवर होते हैं बेचते हैं, औरतें नीचे आ जाती हैं, बूढ़े नीचे आ जाते हैं, बच्चे नीचे कुचले जाते हैं आके। सो एक छीना चपटी का केस आता है। देखें, बात करना और बात है, एक्चुअल होना और बात है। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेंडर कौन है? पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा कर्जा चाइना का है, तकरीबन 1/3। उसके बाद पेरिस क्लब का है, उसके बाद दूसरे बैंकों का है। सिर्फ 7% IMF का कर्जा है। लार्जेस्ट आपका जो लेंडर है वो चाइना है, लार्जेस्ट आपका इन्वेस्टर चाइना है। नौकरी करने का शौक़ है आपको अमेरिका की, सो अमेरिका की नौकरी करते करते हमने चाइना को नाराज़ कर दिया। अब बाकी सारी बातें एक्चुअल सिचुएशन ये है। आपने कहा कि ये हुकूमत कह रही है इमरान खान कर गए और IMF ने जो है वो IMF से कर्जे लिए। हम ये देख रहे हैं कि हर हुक्मरान जो आता है ना, वो पहले 2 साल तो कम से कम लोगों को यही भाषण सुनाता है कि पिछले बड़े करप्ट थे और मैं बड़ा नहीं। अब खान साहब की भी इब्तदाई तकरीरें जो है वो देख रहे हैं तो वो भी उनके लिए यही इल्ज़ाम हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये सारे हुक्मरान और सारे सियासतदान जो अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अगले फिर जो 2.5 साल या 3 साल है उसमें अपने अगले इलेक्शन जीतने के लिए फिर वो बाकी मामला चलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपकी बात पार्शली ठीक हो सकती है, मुख्तलिफ लोगों के बारे में पूरी ठीक हो सकती है, आधी ठीक हो सकती है, नहीं ठीक हो सकती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेन जिम्मेदारी है इस मुल्क की इंटेलेक्चुअल्स की, इंटेलिजेंशिया की, वो ये है कि हम इवेल्यूएट करें। सो इकानमी जो है ये फ़िक्रे नहीं होते, ये स्टेटमेंट्स नहीं होती, इकानमी फिगर्स होती हैं।
इकानमी का जो बंदा फिगर के बगैर बोलता है वो पंजाबी में कहते हैं बकवास करता है। सो आपको और मुझे, आपने जब सारी आपने जो काम शुरू किया है, आपकी उम्र 30 साल है, 35 है, 40 है, आपने अगले 30 साल लोगों को गाइड करना है। जब 30 साल आपने यही काम करना है तो दुनिया में कोई डिस्कशन, कोई टॉक इकानमी के बगैर नहीं होती। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत फिगरों को मुंह मारा करें, इस लिहाजा उसकी बुनियाद पे हम इवेल्यूएट कर लें। सो मैं अगर 2018 का रिजर्व्स देख लूँ, मैं 2018 का करंट अकाउंट डेफिसिट देख लूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट रेशो देख लूँ, मैं कर्ज़े देख लूँ और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस देख लें तो इस बात को वाज़े करना आसान होगा। सो हम कहते हैं कि आप, फिर हम जो दे के गए हैं, उस दिन अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, उस दिन कितने लोगों को नौकरियाँ मिल, 18 लाख लोगों को सालाना नौकरी मिल रही थी। यहाँ पे कर्ज़े कितने लोगों को गए, प्राइवेट सेक्टर को कर्ज़े कितने गए, यू कैन से जीडीपी ग्रोथ क्या थी, दूसरे कर्ज़े कितने थे, टेक्सटाइल कितनी बढ़ रही थी, फॉरेन रेमिटेंस क्या थी, ये सारा कुछ आप सामने 4, 5, 6, 10 से ज़्यादा फिक्रें नहीं हैं। 10 फिक्रें देख लें तो आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट खड़ी कहाँ थी। सो अगर 10 फिक्रें देखेंगे तो हमने पिछले 20 साल में वी वर द बेस्ट गवर्नमेंट जिन्होंने परफॉर्म किया। आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ जाएगी? देखें ये प्रेशर, आप जब हम अंदाज़ा लगाते हैं ना, हम अंदाज़ा लगाते हैं ह्यूमन बीइंग का, रवैयों का, लेकिन सामने क्रिमिनल बैठे हुए हैं, सामने क्रिमिनल बैठे हैं जो लाइफ थ्रेट नहीं, लाइफ ले लेते हैं लोगों की। वो अरशद शरीफ की हो, वो ज़िले शाह की हो या इमरान खान की हो, जो लाइफ ले लेते हैं, जो घरों पे अटैक कर देते हैं, जो बाकायदा फ़ौज लेके 3000 बंदा लेके 4000 बंदा लेके इमरान खान के घर पे हमला कर देते हैं। जब इस तरह के लोगों के साथ आपकी डीलिंग हो तो फिर आप अंदाज़ा नहीं कर सकते चीज़ों का। सो अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होके तो वहाँ जजेस को फेंटी लगाई, जजेस को लटा के मारा 97 में, और आज बाहर खड़े होके ये असम्बली के अंदर बैठ के ये काम करते हैं, तो चीज़ें प्रिडिक्टेबल नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक जो सिचुएशन नज़र आ रही है, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के साथ खड़ी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। मकरूज हुई, तीनों स्कीमों में आप कह लें कि लंबी करप्शन हुई। सस्ती रोटी में भी 70 अरब का स्कैंडल था, 70 अरब रुपये का स्कैंडल था। मुफ्त आटे में कम से कम स्कैंडल 25 से 30 अरब का होगा, दूसरा वो गंदम का होगा। सो इसमें गवर्नमेंट की ये जो खुराक का जो कहत पैदा कर दिया है, या एक इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ है कि जिसमें सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में आटा नहीं है। 23 करोड़ की आबादी, जो हम कहते थे कि हम बड़ी मार्केट हैं, हम मिडिल क्लास की मार्केट हैं, यहाँ पे यू कैन से दुनिया की चौथे या 5वें नंबर पे मिडिल क्लास थी बड़ी। उस मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, लोग टूरिज़म का सोच रहे थे, और हमने वहाँ बता दिया कि आटा भी इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है। अब आप मुंह उठा के देख रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई आपके साथ एंगेज करेगा। किसी को आपके साथ एंगेज करने की ज़रूरत क्या है जहाँ 2-2 मील लंबी लाइनें लगी हों, जहाँ शहादतें हो रही हों आटे वालों की। सो पहला इसका नुकसान ये हुआ। दूसरा, हम देखते हैं कि जो महंगाई के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू बना कि फ़ूड इन्फ्लेशन हुई है 46%, 46% फूड इन्फ्लेशन हुई है। दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवॉइड नहीं होती, एक फूड और दूसरा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की महंगाई हुई है इस महीने में 51%, ट्रांसपोर्ट की 51 और फूड की 46%। और इन दोनों की एवरेज ह्यूमन लाइफ में जो पाकिस्तान में वेटेज है वो है 41%। 41% जो हमारा एवरेज खर्च होता है, 41% खर्चा जो इन दो चीज़ों पे होता है, खुराक और ट्रांसपोर्ट पे। तो उसका आप कह लें कि इसका वेट इसका ये है। अब उन दोनों में महंगाई जब ज़्यादा हुई है